हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। वो पार्ट पेंडिंग था ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। सो वो कवर करते हैं आज। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, this is a important part of abstract algebra, and in fact this is easier as well. This is more of linear algebra में जैसे हम linear transformation discuss करते हैं, it's a similar concept. So पहले तो let's define what is homomorphism. If we define a mapping from a group G to, let's say, G dash, है ना, let f be mapping or function from group G to group G dash such that f a dot b equals to f a star f b for every a b belongs to Z, then f is said to be homomorphism from C to Z dash. So that is how we define homomorphism. Now what we need to basically be careful here is that we have taken dot operation here and star operation here, right? The dot operation is between A and B, and we know that A and B, they are coming from the group G. They are the input, so this is the domain of this mapping or this function, and this is the codomain. So of course input of mapping will be from the domain, है ना? So the domain, from domain we are getting A and B. So this dot operation is the operation of G. So this our group G is group with respect to dot operation, and this star is between the element F and FB. What is FA? FA is nothing but image of A. By FA will be part of the image. Basically जितनी भी G का input होगा उससे output हम उसको image बोलेंगे, right? So these are the image elements. So star is the operation on the set of elements, on the elements which are part of image, and every element of image will be part of G dash. बेसिकली कोडोमेन की सबसेट होगी रेंज हमारी, जो इमेज सेट होगा. सो दिस स्टार ऑपरेशन इज फ्रॉम जी डैश, राइट? तो जी डैश इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन. So whenever we are seeing homomorphism G to G dash, then A and B here will be from G, where the operation is dot, and F and FB, they are part of G dash, and the operation there is star. So जैसा ऑपरेशन हमें डिफाइन होगा, जैसे अगर अपने को let's say ये Z plus, we have already seen that this is an infinite group of integers with operation simple addition, and if we take 2Z which is a set of even numbers, even integers, and we take the operation plus as well, then we can define a mapping from Z to these are, let's call this C and this C dash. Then we can define mapping from G to G dash such that f(x) equals to 2x for every x belongs to Z, which is nothing but Z, right? So ये mapping हम define कर सकते हैं. अच्छा, इसमें हमें one thing which we need to keep in mind is that whenever we define mapping by our own, we need to show that this is a well defined mapping. When we say well defined means it is a mapping, और mapping होने के लिए क्या है कि for every input there should be an output, है ना? जैसे हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे ए बी सी एलिमेंट है, यहाँ पे लेट्स से डी ई एफ है, तो ऐसा ये हमने ये कर लिया लेट्स से, या इसकी आउटपुट यही है, लेट्स से ये बी है, ये सी है, ई डी जो भी है ना, ए टू बी टू सी, और लेट्स से ये सी जो है इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी मैपिंग. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर शुड बी एन इमेज फॉर ए मैपिंग. सो वेल डिफाइन का मीनिंग है कि हमें उसको फॉर एवरी इनपुट एक्स देयर शुड बी एन आउटपुट. और दूसरी चीज़ ये भी है
कि कोई भी एक इनपुट की दो आउटपुट नहीं हो सकती मैपिंग में. द डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, राइट. फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी अ यूनिक आउटपुट, है ना. सो जैसे ए का आउटपुट, ए और बी के आउटपुट सेम हो सकते हैं, बट ए कैन नॉट हैव टू आउटपुट्स, राइट. सो दैट टू शो वेल डिफाइंड व्हाट वी विल डू, we'll take any two input equal and so that output are also equal, because if there are two equal there are two distinct input, मतलब हमने जैसे x और y इनपुट लिया हमने, है ना, और इनकी इमेज हमारे पास एफ एक्स आ गई. अगर ये दोनों इक्वल है, इफ x एंड y इक्वल मीन्स दैट इज अ सिंगल एलिमेंट, तो फिर एफ वाई जो है वो भी इक्वल ही आना चाहिए, बिकॉज वन एलिमेंट कैन नॉट हैव टू इमेजेस इफ इट इज अ मैपिंग. सो वेल डिफाइन करने के लिए हम ये बोलेंगे कि हमेशा हम शो करेंगे कि फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड. दिस विल डू व्हेन वी एज्यूम द मैपिंग बाय आवर ओन. इफ मैपिंग इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, देन इट इज ऑलरेडी वेल डिफाइंड, देन वी डोंट हैव टू गो विद दिस प्रैक्टिस. बट अभी जैसे ये मैपिंग, तो पहले हम बोलेंगे कि एफ इज वेल डिफाइंड ऐसा क्यों, एज इफ वी टेक x इक्वल्स टू y वेयर एक्स वाई कम्स फ्रॉम z, जो हमारा इनपुट z है डोमेन, दैट मीन्स इफ x is equals to y then 2x will be 2y as well. just 2 से multiply कर दिया, because x and y both are integers, so we can have this operation. But this 2x is nothing but fx and 2y is nothing but fy. So we started here that x and y are equal and we ended that fx and fy are equal. So that means what? That means f is well defined. और ये हमने बता दिया कि f is well defined. सो वेल डिफाइंड के लिए हमेशा इनपुट इक्वल्स टू टू इनपुट इक्वल लेंगे ना, आउटपुट सेम दिखा देंगे. अब हमें आते हैं डेफिनेशन पे. नाउ इफ वी सी, हमारे पास ये z प्लस से 2z प्लस में मैपिंग डिफाइन है और fx हमने वेल डिफाइंड बता दिया, इट इज 2x. नाउ वी सी दैट द इनपुट ऑपरेशन इज प्लस एंड आउटपुट ऑपरेशन इज आल्सो प्लस. सो अगर इसमें हम इनपुट ले कोई भी टू एलिमेंट x प्लस वाई, बिकॉज ऑपरेशन इज प्लस, तो ये इसमें क्या आएगा 2x की जगह x प्लस वाई, एंड दैट इज एज गुड एज 2x प्लस 2y, बिकॉज ये सारे इंटीजर ही है. और यहाँ पे भी ऑपरेशन इज प्लस ओनली, सो दिस इज अ प्लस ऑपरेशन एंड दिस इज नथिंग बट fx, बिकॉज fx ही 2x बोला हमने. सो दिस इज fx एंड दिस इज fy. So we have shown that fx plus y is equals to fx plus fy. This is true for every xy belongs to set. So f is homomorphism. ठीक है, सो ये चीज है. तो दैट इज हाउ वी डिफाइन होमोमॉर्फिज्म. तो ये तो होगी होमोमॉर्फिज्म. अब इसके बाद देखो, there are types of homomorphism, means we can further refine it. Homomorphic image. Let's say f from G to Z dash be onto homomorphism. Onto homomorphism. Then G dash is said to be homomorphic image of Z. ठीक है. सो इफ वी टेक f from G to G dash, that is, let's say that is onto homomorphism. homomorphism हमने सीखा कि what is homomorphism. onto means this mapping is onto. onto क्या होता है कि कोडोमेन जो होगी आपकी वो और जो इमेजेस का सेट होगा वो सेम होगा. देखो इसमें हमने जो मैपिंग डिफाइन की G to G dash, इसमें हम जो रेंज है, रेंज ऑफ f, वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, या इमेज ऑफ f बोल सकते हो उसको. image of f, we just can denote this by image I am f. This is nothing but fx such that x comes from Z. So this is how we can define image. So this is we can say that जो image होगी हमारी या जो range होगा, that will be subset of G dash, because सारे के सारे output G dash में ही जाएंगे ना. But this image may not be equal to codomain, but it will be subset of that. It can, when it become equal, then we say that onto mapping का क्या मीनिंग हो जाएगा, जो G dash है आपका वो और इमेज सेट है यहाँ पे, इसको आप रेंज भी बोल सकते हो. When these two are equal, we say that the mapping is onto. मीनिंग क्या हुआ कि for every
y belongs to g dash, there exists x belongs to z such that fx equals to y, fx equals to y. This is true for every y belongs to g dash. मतलब अगर ये g dash आपके पास ये z है, इसमें से we take any element corresponding to that there is a input, then we say that the mapping is onto, है ना. So अगर हमारी जो homomorphism है, if that is onto, first we'll show that this is homomorphism, then we'll show that this is a onto mapping, then we will always say that g dash is nothing but homomorphic image of z. और हम ये बोल सकते हैं कि उस केस में हमारे पास g dash क्या हो जाएगा, इस केस में अगर ये onto homomorphism है, if f is onto homomorphism, then f मान लो हमारा g से g dash square, then this g dash is nothing but we can denote this as fc because every this range is nothing but g dash only. तो ये हो गया हमारे पास. तो अगर हम जैसे कोई मैपिंग हम ऐसे भी डिफाइन करें, मान लो g dash से g से हमने f ऑफ g में ये मैपिंग डिफाइन कर दी है ना, तो उस केस में जो भी हमारी मैपिंग है f लेट से g से रेंज में डिफाइन कर दी, तो इस केस में हमने कोडोमेन को रेंज ही बना दिया. तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ओंटो भी होगी हमेशा, राइट. सो दैट इज ओंटो होमोमॉर्फिज्म एंड वी से दैट दिस इज ए होमोमॉर्फिक इमेज. जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन में देखें हम जो अभी हमने डिफाइन किया g टू g डैश, मतलब इसमें हमने क्या लिया था, z से टू z प्लस ऑपरेशन थे हमारे दोनों में, हमने मैपिंग ले ली थी fx इक्वल्स टू 2x. तो इस केस में देखो अगर अपन 2x इक्वल्स टू मतलब y ले लें हम 2z में से, तो y क्या होगा आपका, y इज इवन नंबर, तो दिस विल बी 2x वेयर x बिलोंग्स टू z, है ना. सो और बट 2x क्या है हमारा, fx ही है. सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 2z. सो दिस मैपिंग इज, सो f इज onto as well, है ना. तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि दिस f हमने होमोमॉर्फिज्म पहले शो कर दिया, f z टू 2z इज onto homomorphism, onto homomorphism. और इस that's why we can say that 2z is homomorphic image of z, we can say that, right. 2z is homomorphic image of z. ठीक है. अब मैपिंग है तो देखो 1 1 हो सकती है, onto हो सकती है, onto प्लस होमोमॉर्फिज्म होगी homomorphic image. Here we can say it's a onto homomorphism from g to g dash. अब जो है 1 1 मैपिंग की बात करें अगर, पहले हम इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन करते हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म. So this is a special kind of homomorphism. Homomorphism plus some extra condition. So what is that? This has to be homomorphism and second condition is 1 1 mapping. ठीक है. So basically हम क्या बोल सकते हैं कि f from g to g dash is said to be isomorphism if f is homomorphism. And what is meaning of that? Meaning of that is f a dot b equals to f a star f b for every a b belongs to z, and f is 1 1 and f is 1 1. If these two conditions are 1 1 function, right? If these two conditions are satisfied, then f is a isomorphism. और 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, देखो कोई भी मैपिंग 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 का क्या मतलब होता है कि फॉर एवरी जैसे x y है, ये a b c है, तो इस मैपिंग को हम 1 1 बोलेंगे. बेसिकली कोई भी दो इनपुट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. 1 1 का क्या मतलब है कि हम इसका जो मैथमेटिकली हम शो करते हैं 1 1 मैपिंग f इज 1 1, ये हम कैसे शो करते हैं, वी टेक fx इक्वल्स टू fy and if that implies that x equals to y, then we say that mapping is 1 1. Basically if there are
जैसे ये है, इफ देयर आर इक्वल एफ एक्स एंड एफ वाई इक्वल है तो फिर इनपुट भी इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि अगर वो डिस्टिंक्ट हो गई तो फिर ये 1 1 नहीं होगी, राइट। ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है, राइट। सो वेल डिफाइन का रिवर्स प्रोसेस 1 1 का हो गया हमारे पास। सो वेन एवर आइसोमॉर्फिज्म इज आस्क्ड वी फर्स्ट शो होमोमॉर्फिज्म देन 1 1। अब इसमें भी हम एक जैसे हमने वहाँ पे ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी, यहाँ पे भी हम ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी, इससे आइसोमॉर्फिज्म विच इज ऑन्टो, राइट। एफ जी टू जी डैश इज ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म, एफ जी टू जी डैश इज ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म, then G dash is said to be isomorphic image of G। और देखो अच्छा, जब हमने इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, G is isomorphic to G dash, है ना, या सम बुक्स इसको इस टाइप से भी डिनोट कर देते हैं, ये दोनों नोटेशन यूज होता है। और इससे पहले हमने जैसे ये पढ़ा था ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म, है ना, तो इस एफ जी टू जी डैश ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम डिनोट करते हैं 1 एंड दिस, या सम बुक्स डिनोट दिस वे एज वेल, राइट। तो ये सिंबल है इसका, बेसिकली यहाँ पे 1 इक्वल एंड 1 दिस कर ली एरो, यहाँ पे 2 इक्वल एंड कर ली एरो, या ऐसे दोनों कर ली या सिंगल कर ली, राइट। सो ये हमने डिफाइन कर दिया। देखो इसमें पर एक चीज है, जैसे इस केस में तो जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, पर हम कन्वर्स नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि जी इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी डैश, नो, क्योंकि ये सिर्फ ऑन्टो मैपिंग है, इसमें 1 1 नहीं है, यहाँ पे 1 1 मैपिंग भी है। तो इस केस में क्या हो गया, देखो कि हमारे पास जो एफ है ना, एफ जी टू जी डैश जो है, ये हमारे पास इस केस में जब ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म होगी तो ये 1 1 तो होएगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वी नीड होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1, सो 1 1 तो हो गया ये, और ऑन्टो इसमें बोल रहे हैं, और होमोमॉर्फिज्म ये है ना। ये कौन सा केस है, दिस इज अ ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म वाला केस। तो ये तीनों चीज होगी, और हमें पता है कि अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन्टो, वी आल्सो हैव ए नेम फॉर दैट, बाइजेक्टिव मैपिंग, राइट। एंड बाइजेक्टिव मैपिंग इज अ इन्वर्टिबल मैपिंग। अब मैपिंग विच इज 1 1 ऑन्टो वो इस टाइप ही होगी हमेशा, जैसे ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, तो ये से 1 to 1 रिलेशन होगी। वी आल्सो से 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस मींस 1 1 एंड ऑन्टो मैपिंग। सो इस केस में इनवर्स भी अलाउड होगा, मतलब अगर एफ जी टू जी डैश है तो एफ इनवर्स आपका क्या होगा, जी डैश टू जी होगा। वी कैन शो दैट इवन दैट इज आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज आल्सो ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एफ आपका 1 1 ऑन्टो है तो इन्वर्टिबल मैपिंग होगी, और वो भी वी नो दैट दैट विल आल्सो बी 1 1 एंड ऑन्टो। और होमोमॉर्फिज्म हम शो कर सकते हैं कि अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ इनवर्स भी होमोमॉर्फिज्म होगा इस केस में। सो दैट्स व्हाई इस केस में क्या होगा, इस केस में if G dash is isomorphic image of G, then converse is also true. In fact, G is also isomorphic image of G dash. तो ये हम इनफैक्ट ये जो हमारे पास ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, and this is transitive relation. If these three properties are followed, then we say that that relation is a equivalence relation. Reflexive का क्या मतलब है कि भाई अगर G जो है वो आइसोमॉर्फिक है G डैश के, that means G डैश भी आइसोमॉर्फिक होगा G के। तो ये हम ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म की बात है, राइट। तो ये वी कैन शो दिस कि भाई एफ इन्वर्टिबल मैपिंग है, एफ इनवर्स भी होगी, तो 1 1 ऑन्टो तो होगी, होमोमॉर्फिज्म भी ट्रांसफर हो जाएगी उसमें, दैट वी कैन शो। तो ये चीज होगी सिमेट्रिक, नहीं ये जो हमने बताया ये तो क्या है, सिमेट्रिक। भाई जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, दैट इंप्लाइज दैट जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी, तो दैट इज द सिमेट्री। ए रिलेशन टू बी इंप्लाइज बी रिलेशन टू ए, तो दैट इज द सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि जी जो है, रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग होता है कि भाई जो जी है ना वो खुद का आइसोमॉर्फिक तो होगा,
तो सही बात है ये तो भी। जैसे आप एक मैपिंग जी से जी में डिफाइन कर दो, एफ एक्स ही डिफाइन कर दो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। whenever we need to show a homomorphism or isomorphism, we just need a single mapping, right? If we could establish a mapping which is let's say isomorphism, then we'll say that there is a isomorphism between g and g dash. If there exists a single mapping, even if we could show a single mapping between g and g dash which is homomorphism, तो हम बोल सकते हैं कि there is a homomorphism from g to g dash. और अगर हम नहीं दिखा पा रहे कि देयर इज नॉट इवन ए सिंगल सच मैपिंग, देन वी से कि भाई देयर वोंट बी एनी आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म बिटवीन जी एंड जी डैश। तो इन जनरल हमें पता नहीं चलेगा कि भाई मैपिंग है कि नहीं ऐसे मैपिंग असाइन करके। सो जनरली व्हेनेवर वी गो फॉर निगेशन, वी नीड व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू से दैट बिटवीन दिस ग्रुप लेट्स से जेड या आर, इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, तो देन वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, है ना। उसमें हम मैपिंग से नहीं, मैपिंग तो हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो उस केस में विल यूज द प्रॉपर्टीज व्हेनेवर वी नीड टू शो पॉजिटिव रिजल्ट, टू शो दैट देयर इज अ आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म, वी लुक फॉर सम मैपिंग, है ना। तो ये है, तो इसका मतलब ये जो है ये तो आपकी वैसे ये दिस इज आइडेंटिटी मैपिंग, दिस इज 1 1 ऑन टू सब है ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और ये होमोमॉर्फिज्म की रिलेशन भी सेटिस्फाई करती है। जैसे अपन मान लो ऑपरेशन दोनों में डॉट डॉट ले ले, तो एफ एक्स वाई उधर भी एक्स वाई, एफ एक्स एफ वाई होगा। तो इनफैक्ट ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है दैट इज ट्रू, दैट जी ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, ग्रुप जी टू जी इज ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो ये हो गया हमारा मतलब ये हो गया ऑन्टो आइसोमॉर्फिज्म। ट्रांजिटिव का क्या मतलब कि भाई जी1 इज आइसोमॉर्फिक ऑन्टो आइसोमॉर्फिक टू जी2 एंड जी2 इज ऑन्टो आइसोमॉर्फिक टू G3, then that implies that G1 is onto isomorphic to G3. That is the transitive relation. So all these three properties are followed by the equivalence, this onto isomorphism. So it's a equivalence relation. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। जैसे हमने अभी एफ जेड टू जेड ये सब हम ग्रुप में देख रहे हैं। ग्रुप में वी जस्ट नीड वन ऑपरेशन। रिंग में भी ये कॉन्सेप्ट है। रिंग में हम देखेंगे कि जेड प्लस डॉट इज अ रिंग, टू जेड प्लस डॉट इज आल्सो ए रिंग, बट देयर वोंट बी एनी, उस केस में हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगी। मतलब होमोमॉर्फिज्म जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आइसोमॉर्फिज्म थी, उधर नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है वो हम देखेंगे, क्योंकि एक में यूनिटी एक में नहीं है वहाँ पे रिंग वाले केस में, राइट। दैट्स व्हाई टू डिफरेंशिएट दिस होमोमॉर्फिज्म इज ओनली यूज द वर्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक क्वेश्चन से तो हमें समझ में आ ही जाएगा ऑपरेशन देख के कि अगर एक ऑपरेशन तो ग्रुप है, इफ देयर आर टू ऑपरेशन देन इट्स अ रिंग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और हम डिफाइन करते हैं, कर्नेल। कर्नेल ऑफ जो भी आपकी होमोमॉर्फिज्म है, लेट्स से एफ इज लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी homomorphism, then kernel of f we define this way, all element from G such that their output is identity of G dash, where E dash is nothing but identity of G dash. So kernel is that set all those elements whose output is identity, and identity of what? G dash. वैसे भी हमें पता है कि fx is part of G dash only. So if fx result in E dash, then that x, collection of such x is known as kernel of this mapping, है ना। Then this is known as kernel, ठीक है। अब ये हम शो कर सकते हैं कि दिस कर्नेल, अच्छा देखो कुछ प्रॉपर्टीज देखें अगर अपन होमोमॉर्फिज्म की, तो देखो अगर लेट्स से हमारी मैपिंग है जी टू जी डैश एंड दिस इज होमोमॉर्फिज्म, देन पहली चीज एफ ई जो होगा वो हमेशा ई डैश होगा। सेकंड थिंग एक्स इनवर्स का एफ जो होगा दैट विल बी एफ एक्स का इनवर्स। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी। So these are the two trivial properties, but they are useful.
देखो ये हम प्रूव कर सकते हैं, ई हमारी ग्रुप जी की आइडेंटिटी है यहाँ पे, ई कम्स फ्रॉम जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। देखो ई इक्वल्स टू ई हम ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी, लेट्स से डॉट ऑपरेशन है यहाँ पे, जी डॉट और जी स्टार जी डैश डॉट, लेट्स से डॉट ऑपरेशन हम ले रहे हैं दोनों में, है ना। सो अगर इसमें अपन देखें बिकॉज दिस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म सो इट्स ए वेल डिफाइंड मैपिंग, तो हम इस पे दोनों तरफ एफ अप्लाई कर दें, तो दिस इज एफ ई, यहाँ से ये क्या आ गया एफ ई डॉट एफ ई इक्वल्स टू एफ ई। ये क्यों करा हमने, बिकॉज दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है दैट एफ ए डॉट बी विल बी एफ ए डॉट एफ बी, बिकॉज दोनों तरफ ऑपरेशन हमने डॉट से डिफाइन किया है, कोई सा भी ऑपरेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई हमें एफ ई इक्वल्स टू ई डैश बोलना है, ठीक है। तो देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि चलो ये तो ठीक है, अगर अपन एक्स देखें, एक्स को हम ई एक्स या एक्स ई लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। तो अब इस पे अगर अपन एफ अप्लाई करें तो ये क्या आएगा एफ ई एक्स एफ एक्स ई, और बिकॉज दिस इज होमोमॉर्फिज्म सो वी कैन राइट दिस एज एफ ई एफ एक्स और दिस इज एफ एक्स डॉट एफ ई, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये एफ एक्स हो गया, तो यहाँ से हमें अच्छा एफ एक्स क्या है, बिकॉज एफ जो है हमारा जी टू जी डैश है, तो एफ एक्स इज ऑपोस्ट पार्ट ऑफ जी डैश, इट्स एलिमेंट ऑफ रेंज, तो कोडोमेन में तो होगा ही है। सो यहाँ से, पर यहाँ से देखो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि एफ ई से जब एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी आर गेटिंग एफ एक्स अगेन, एंड सिमिलरली एफ एक्स को व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय एफ ई अगेन वी आर गेटिंग एफ एक्स। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एफ एक्स बिलोंग्स टू ये जो हमारी इमेज ऑफ एफ में ये चीज़ हो रही है, राइट। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो ई है ना एफ ई, ये अगर इसको अपन ई डैश बोल दें तो ये आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, देखो ऊपर भी ऐसा है ये। सो दिस ई डैश इज नथिंग बट ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ इमेज ऑफ एफ, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ई डैश जो है वो आपकी आइडेंटिटी होगी, पर ये इमेज एफ में आ रही है, मतलब ई डैश जो है आपकी, ई डैश किसको बोल रहे हैं हम, ई डैश हमने किसको बोला एफ ई को, तो यही हमें प्रूव करना था कि एफ डैश इक्वल्स टू ई वेयर ई डैश इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ इमेज। अच्छा वी ऑलरेडी नो दैट इफ देयर इज a group G and there is a subgroup of G H, if then identity of group will also be identity of subgroup और identity of subgroup will also be identity of group। ये हम जानते हैं आइडेंटिटी सेम ही होती है ग्रुप और सब ग्रुप की, राइट। रिंग में ऑफकोर्स वैसा नहीं है पर ग्रुप में ऐसा है। तो ये जो इसकी आइडेंटिटी है इमेज की, यही आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, बिकॉज जो भी चीज़ इमेज में है वो जी डैश में तो है ही कोडोमेन में, तो ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश एज वेल, ये हम बोल सकते हैं, एंड ई डैश इज नथिंग बट एफ ई, ठीक है। सो ई डॉट ई इक्वल्स टू ई का यूज नहीं हुआ यहाँ पे, हमने आइडेंटिटी एक्सियोम ऑफ ग्रुप जी यूज किया, फिर उस पर मैपिंग अप्लाई की, तो दिस प्रॉपर्टी वी कैन डायरेक्टली यूज। ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी हमने लिखी कि एफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एफ एक्स का इनवर्स, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स एक्स इनवर्स जो होगा वो हमेशा ई होगा, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जो है हमारा उसमें आइडेंटिटी ई है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब आप इस पे दोनों तरफ या इसको आप एक्स इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। अब मैपिंग अगर अपन अप्लाई कर दें बिकॉज इट्स ए वेल डिफाइंड मैपिंग, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अगेन दिस इज होमोमॉर्फिज्म, सो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। बट एफ ई हमने अभी देखा ई डैश है, तो यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया कि भाई ये जो भी चीज़ है एफ एक्स और ये सम एलिमेंट एफ एक्स एंड सम एलिमेंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, पर ये तो हमने सीखा है इसका क्या मतलब होता है कि भाई एफ एक्स जो है इसका इनवर्स ये दूसरा जो भी एलिमेंट लिखा है इसके साथ वो है, तो यही हमें एस्टेब्लिश करना था। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी,
ठीक है, सो दोनों चीज़ हमारे लिए यूजफुल है, इसमें वी जस्ट नीड एफ टू बी होमोमॉर्फिज्म। तो ये है, बाकी हम कुछ क्वेश्चन और देख सकते हैं इसमें। कर्नेल हमने डिफाइन किया, राइट। हाँ, तो वो कर्नेल देखो अभी, अच्छा ये हम प्रूव कर सकते हैं कि इमेज ऑफ एफ जो होगा दैट विल बी सब ग्रुप ऑफ जी डेज, राइट। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, ये आप ट्राई करना, आसान सी चीज़ है। सब ग्रुप की डेफिनेशन लगानी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, ये चीज़ है। अभी हमने कर्नेल एफ डिफाइन किया था, कर्नेल एफ इज x belongs to g such that fx equals to e dash, राइट, ये हमने देखा। सो अच्छा, इसमें अभी हमने सीखा कि एफ ई जो होता है वो ई डैश होता है। इसका मतलब ये ई तो हमेशा कर्नेल एफ में लाई करेगा ही भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश, जब ई और हर ग्रुप में ई होगा, इनपुट ई तो होना ही है हमेशा, तो और एफ ही हमेशा ई डैश आएगा। सो ई इज पार्ट ऑफ कर्नेल एफ। इसका मतलब कर्नेल एफ जो होगा ये कभी एम्प्टी तो होगा नहीं, इसे नॉन एम्प्टी सेट। फर्दर कर्नेल एफ जो है इसमें एलिमेंट एक्स विच इज पार्ट ऑफ जी वो आ रहा है, इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ जी, दिस इज नॉन एम्प्टी, दिस इज सबसेट ऑफ जी। और ये हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एज वेल। जैसे अगर अपन ए बी बिलोंग्स टू कर्नेल एफ ले, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एफ ए जो है वो भी ई है और एफ बी है वो भी ई है, कर्नेल ई डैश है, बेसिकली कर्नेल में होने का मीनिंग ही है ये। अब अगर अपन एफ ए बी इनवर्स करें एंड बिकॉज यहाँ पे जो एफ है दैट इज द होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल भी डिफाइन फॉर होमोमॉर्फिज्म, राइट। ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इसमें होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाएं, तो दिस इज एफ ए एफ बी बी इनवर्स एफ ए। अभी हमने सीखा कि एफ एक्स इनवर्स इज एफ एक्स का ओवरऑल इनवर्स इन ए होमोमॉर्फिज्म, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। पर हमने यहाँ देखा कि एफ ए भी ई डैश है और ये भी ई डैश है, तो ये तो ई डैश और ई डैश का इनवर्स भी ई डैश, सब कुछ ई डैश। इसका मतलब एफ ए बी इनवर्स इज ई डैश, दैट मीन्स ए बी इनवर्स इज आल्सो इन कर्नेल ऑफ एफ। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ, बट दिस इज द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो कर्नेल ऑफ एफ है आपका दैट इज सब ग्रुप ऑफ जी। देखो कर्नेल इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इमेज इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अच्छा, फर्दर वी कैन प्रूव दैट दिस कर्नेल एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इनफैक्ट अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, हम यही दिखाते हैं ना, एच इज नॉर्मल इन जी इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच where every h belongs to h and x belongs to z. That is how we define it. तो अब ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ पे h मतलब हम कर्नेल f की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से अपन इसमें h ले लें अगर कर्नेल ऑफ f में, that means f ऑफ इनपुट जो भी होगा इसका वो e डैश होगा by the definition of कर्नेल। अब अगर हम x h x इनवर्स का आउटपुट देखें तो बिकॉज f इज होमोमॉर्फिज्म, सो इसको हम एफ एक्स एफ एच एंड एफ ऑफ एक्स इनवर्स एंड उसको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं। एफ एक्स हमें नहीं पता क्या है, पर एफ एच हमें पता है, दैट इज ई डैश एंड दिस इज एफ एक्स का इनवर्स। पर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, राइट। तो ई डैश किसी भी जी डैश के एलिमेंट एफ एक्स और एफ एक्स ओवरऑल इनवर्स दीज आर द एलिमेंट ऑफ रेंज विच इज सबसेट ऑफ जी डैश। तो सारे जी डैश के एलिमेंट है और ई डैश उसकी आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स ही हो जाएगा एंड दिस इज एफ एक्स का इनवर्स। बट देन दिस इज ई डैश ओनली बिकॉज एनी एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स, तो ई डैश ये है। इसका क्या मतलब है कि इसका आउटपुट ई डैश है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स तो कर्नेल में ही है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ, और एक्स हमने कोई भी एलिमेंट लिया था जी का, but that is how we define normal subgroup. So kernel F is nothing but normal subgroup of Z. ठीक है ना, हमने ग्रुप थ्योरी में ये डिस्कस किया है प्रीवियस प्लेलिस्ट में दैट इफ H या H is normal in Z then factor group G by H is defined. This is known as factor group, right? This is nothing but हम ऐसे डिफाइन करते थे, so H X where X comes from Z, राइट। सो इसका मतलब जो कर्नेल एफ आपका नॉर्मल है तो आप जी ओवर कर्नेल एफ ये क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन होगा, है ना।
जस्ट फॉर लेट्स से के से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स से कर्नेल ऑफ एफ, लेट्स डिनोट दैट बाय के। तो इन दैट केस ये हो जाएगा, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, के एक्स वेयर एक्स कम्स फ्रॉम जी। देन दिस विल बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ऑपरेशन क्या होता था, फैक्टर ग्रुप में हमने सीखा था कि दैट ऑपरेशन इज कोसेट मल्टीप्लिकेशन, राइट या लेफ्ट कोई भी एक, राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा के, कैसे डिफाइन करते हैं कोसेट मल्टीप्लिकेशन, जैसे के एक्स डॉट के वाई दैट इज नथिंग बट के एक्स वाई, दिस इज द कोसेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन दिस इज अ ग्रुप। इसमें कोई अगर इश्यू आपको तो यू कैन रेफर द लेक्चर वेयर आई हैव डिस्कस्ड फैक्टर ग्रुप, है ना, फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप, उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर दी। नाउ दिस लीड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई थिंक सीएससी ने एक बार पूछा भी है वो, दैट एवरी कोशेंट ग्रुप इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप, दैट ग्रुप। थ्योरम बोल सकते हैं इसको पहले। एवरी कोशेंट ग्रुप is homomorphic image of the group, ये है, दिस इज अ थ्योरम। तो कहने का क्या मतलब है, लेट एन बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, देन जी बाई एन इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। ये इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी कोसेंट ग्रुप इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दैट ग्रुप। बेसिकली जी जो है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जी बाई एन है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब, अगर कोई मैपिंग हम डिफाइन करें जी टू जी बाई एन, है ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जी इज होमोमॉर्फिक, जी बाई एन इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। ये हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम ये एफ जी टू जी बाई एन डिफाइन किया सच दैट हम इनपुट हम एक्स लें, और ये हमने सीखा था एन एक्स, है ना, दिस इज वेयर एक्स कम्स फ्रॉम जी, जी बाई एन हम कैसे डिफाइन करते थे, एन एक्स वेयर एक्स कम फ्रॉम जी। तो अगर ये मैपिंग हम डिफाइन करें वेयर एक्स इज फ्रॉम जी, तो दिस विल बी होमोमॉर्फिज्म, हम प्रूव कर सकते हैं, और ऑन्टो होगी है, तो दैट्स यही हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले तो बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी हैव डिफाइंड फ्रॉम आवर एंड, सो वी नीड टू शो दैट दिस इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग। तो वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका क्या मतलब होगा कि भाई एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू ई, ऐसे लिख सकते हैं हम, लेट्स से दीज एक्स वाई दे आर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एक्स, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जी। तो देखो इसका यह मतलब होगा कि भाई ई जो है, ई तो हमारा किस में होता है, जो नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पे, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसकी आइडेंटिटी तो होगी, इसमें ग्रुप की आइडेंटिटी होगी सब ग्रुप में। इसका क्या मतलब है कि भाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन, पर ये हमने सीखा था कि इफ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन देन दिस इज एज गुड एज एन एक्स इक्वल्स टू एन वाई। पर एन एक्स क्या है, एन एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स एंड एन वाई इज नथिंग बट एफ वाई। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो ये जरूरी नहीं है 1-1 मैपिंग हो, क्यों, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई विल लीड टू दिस, दिस विल लीड टू दिस, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन। अब इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एन जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसमें ई तो है ऑफकोर्स, पर सारे एलिमेंट ई नहीं है। तो अगर हमें एफ 1-1 दिया हो तब हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम देखेंगे बाद में दैट अगर आपकी होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, उस केस में फिर ये 1-1 भी हो जाएगी, पर होमोमॉर्फिज्म वाले केस में वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट। अब हम सेकंड हमें दिखाना है कि एफ इज ऑन्टो, तो वो तो है, देखो इसमें आउटपुट जो है हमने एन एक्स डिफाइन किया, तो ऐसे कुछ आप एन जी ले लो, इसको हम वाई बोल दें, है ना, कोई भी एलिमेंट लिया हमने वाई बिलोंग्स टू जी बाई एन, तो वो जो है इस फॉर्म का होगा एन जी टाइप का, पर एन जी हमने किसको डिफाइन किया, एफ जी। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी बाई एन
there exists G belongs to Z such that FG equals to Y, which is nothing but NG, ना. So F is onto. So we have shown that F is onto. अच्छा, अभी तो onto ही दिखाया हमने. अब हम होमोमॉर्फिज्म भी बता सकते हैं. जैसे अगर अपन f x y देखें तो हमने एफ एक्स कैसे डिफाइन किया है, एन एक्स, तो इसको अपन एन एक्स वाई लिखेंगे. बट बिकॉज एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, सो नॉर्मल सब ग्रुप में वी नो दैट कोसेट्स, जो कोसेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, तो एन एक्स एन वाई हो जाता है. बट दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई. सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, और ऑनटो हम पहले दिखा चुके. सो इसका मतलब दिस इज ऑनटो होमोमॉर्फिज्म एंड दैट इज ऑनटो होमोमॉर्फिज्म इज G by N जो है दैट इज द आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. ना होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G है ना. तो ये होमोमॉर्फिक इमेज हो गया. ठीक है. सो ये चीज़ है. तो आई थिंक ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. अच्छा, इसमें हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो n है ना यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट कर्नेल ओनली. जैसे हमने f ये यहाँ से ये डिफाइन की G by N, तो कर्नेल f अगर इसका लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ऑल दोज x फ्रॉम G सच दैट आउटपुट इज E डैश. और फर्दर इन द दैट क्वोशिएंट ग्रुप लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट ये चीज़ हम ऐसे डिफाइन करते हैं. और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ऑफ G by N इज n ओनली, राइट. इसकी आइडेंटिटी n ही होती है. तो इसका मतलब ये दिस इज नथिंग बट n, ई डैश मतलब यहाँ पे n. तो और एफ एक्स हमने क्या डिफाइन किया, एन एक्स, और ये ई डैश कब होगी, अगर यहाँ x हमारा कर्नेल ऑफ f से आ रहा है, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश. ई डैश आपका n ही है. एन एक्स इक्वल्स टू n कब होता है, जब x बिलोंग्स टू n. इसका मीनिंग हो गया कि x बिलोंग्स टू n. इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो कर्नेल f है ना, इसका हर x जो है वो n में भी है. ऐसे रिवर्स भी जा सकते हैं. अगर x बिलोंग्स टू n है तो एन एक्स इक्वल्स टू n होगा, और अगर एन एक्स इक्वल्स टू n है इसका मतलब x आपका कर्नेल f में. तो दोनों में ये ट्रू है, मतलब ये सबसेट ऑफ n भी है और n इज सबसेट ऑफ कर्नेल f भी है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n इज नथिंग बट कर्नेल ऑफ f ओनली. सो इन दिस मैपिंग G इज आइसोमॉर्फ, G has G by N as its homomorphic image. This N is nothing but kernel of F only. ठीक है ना. ऑफ कोर्स वो मैपिंग जो हम डिफाइन करेंगे वो वाली, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे G by N where N is nothing but kernel of F. ठीक है. सो ये है. तो दिस रिजल्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. विल डिस्कस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उसमें इसका यूज है, राइट. सो ये है. बाकी हाँ, अगर हम जैसे ये हमने कर्नेल डिफाइन किया, मान लो इसमें हम एफ होमोमॉर्फिज्म एफ इज 1 if kernel of f is E. देखो ये चीज़ भी हम दिस इज ए वन ऑफ द रिजल्ट्स, इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. दिस कैन बी प्रूव. पहली बात तो दिस इज ट्रू बोथ वेज. तो अगर मान लो f इज 1 होमोमॉर्फिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 1 होमोमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है, हमने अभी सीखा. दैट इज नथिंग बट एज गुड एज सेइंग कि f इज आइसोमॉर्फिज्म. Then we need to show that kernel of f is nothing but E only. तो देखो इसमें हम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई ले लें, या कर्नेल एफ हम डिफाइन करते हैं. चलो इसमें कर्नेल एफ हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल दोज एक्स फ्रॉम इनपुट सच दैट आउटपुट इज आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, राइट. सो ऐसे हमने डिफाइन किया. इसका मतलब अगर एक्स कर्नेल में है तो एफ एक्स क्या होगा, ई डैश होगा. पर हमने अभी सीखा कि ई डैश हमेशा एफ ई होता है, मतलब ई डैश इज नथिंग बट एफ ई. ये हम ऐसे भी बोल पाएंगे क्योंकि एफ हमारा इस बार 1 1 भी है ना, और एफ ई डैश तो है ही.
ठीक है, एफ ई डैश से किसी और की भी इमेज है, हमें उसमें तकलीफ नहीं है, बट दिस इज एफ ई एज वेल, बट एफ इज 1 1। सो इसका क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ई मीन्स एक्स इक्वल्स टू ई बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 1, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई शुड इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू वाई। पर हमने तो कोई भी रैंडम एक्स लिया था, ये इसका मतलब कर्नेल एफ में और कोई है ही नहीं, इसमें एक्स मतलब ई है ना। सो इफ एफ इज आइसोमॉर्फिज्म देन कर्नेल ऑफ एफ इज ऑलवेज आइडेंटिटी, है ना। सो दिस सेट दिस इज ट्रिवियल सबग्रुप इफेक्ट, राइट। ऐसे हम कन्वर्सली प्रूव कर सकते हैं, इफ कर्नेल ऑफ एफ is E, then if kernel of f E, then क्या प्रूव करना है हमें कि भाई हमारी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। देन टू शो दैट होमोमॉर्फिज्म f is 1 1 या दिस विल बिकम आइसोमॉर्फिज्म। तो ठीक है, हमें कर्नेल एफ ई दिया है, सो लेट्स से हमें 1 1 प्रूव करना है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, और अगर हम दोनों तरफ से एफ वाई इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एफ वाई इनवर्स बाय एफ वाई इज फ्रॉम जी डैश, सो element an element inverse will be identity of g dash, that is e dash. Further by the property, because f is homomorphism, तो ये हमने अभी सीखा था कि f y inverse is nothing but f y का inverse, ऐसे लिख सकते हैं। और this is f x y inverse equals to e dash, ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो इनपुट है इसका आउटपुट e dash, that means x y inverse comes from kernel of f, बट कर्नेल ऑफ एफ जो है हमारे इस कन्वर्स केस में इट कंटेन्स ओनली ई एलिमेंट, सो दिस हैज टू बी ई देन। तो इसका क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू वाई। सो वी स्टार्टेड हियर एंड वी एंडेड हियर, बट दैट इज हाउ वी डिफाइन दैट एफ इज 1 1 में भी। तो यही प्रूव करना था। तो होमोमॉर्फिज्म हुज कर्नेल इज consist of only e element, then it has to be 1 1 or this homomorphism will become isomorphism, ठीक है। so this is there।